اب چلیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں چھوٹے بچے کے جی کے بچے کسی بھی زبان کو سب سے پہلے مرحلے کی جو چیزیں ہیں وہ سیکھتے ہیں. یعنی زبان جن حروف سے، جن الفابیٹ سے، جن ورن مالا سے بنتی ہے اس کے بارے میں وہ سیکھتا ہے. اتنی چیزیں بچہ سیکھتا ہے ایل کے جی. ہم جو ہے جو بنیادی غلطی کرتے ہیں چھوٹے بچوں کو پڑھانے میں، ہمارے یہاں بھی ہے اور جگہوں پہ بھی ہے، وہ یہ ہے ایک تو یہ ایک نشان ہے، یہ ایک نشان ہے، ایک علامت ہے، سائن، ایک نشان نہیں پڑھ سکتا، یعنی کوئی چیز ہے یہ. اس کا نام ہے الف، اس کا نام ہے بے، اس کا نام ہے اے، اس کا نام ہے بی. یہ اردو اور انگریزی میں خاص طور سے دھیان دیں، ہم یہ پڑھاتے ہیں بچے کو شروع کریں گے اے بی. یہ کیا ہے؟ اے ہے، یہ بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، ای ہے، الف ہے، بے ہے، تے ہے، تے ہے، جیم ہے. ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کو لیٹر یا حروف کے نام پہلے نہیں سکھانا چاہیے، ان کو اس کا ساؤنڈ سکھانا چاہیے، اس کی فوئنک سکھانی چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی سمجھیں. اس کا نام ہے الف، یہ ایک علامت ہے، یہ ایک نشان ہے، یہ ایک چیز بنائی ہے آپ نے. اس کا نام ہے الف. الف کہیں پڑھا نہیں جاتا، کہیں پر الف استعمال ہوتا ہے؟ الف کھانا، الف 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 با، ابا کو الف با نہیں بولتے. ابا لکھیں گے کیا پڑھیں گے؟ الف با پڑھیں گے، آ با پڑھیں گے. یہ اصل میں آ ہے، ای ہے یا او ہے. وہ الف اس کا نام ہے، اس کا نام ہے اے. یہ نہیں ہے، پڑھا یہ نہیں جاتا، یہ آ پڑھا جاتا ہے. یہ بی ہے، یہ بی کہیں پڑھا نہیں جاتا. بی پڑھنے کے لیے بی کے بعد ڈبل ای لگانا پڑے گا، تب آپ بی پڑھ پائیں. اس کو آپ بی کبھی نہیں پڑھ سکتے، یہ با ہے. ہاں اس کا نام بی رکھا گیا ہے تو بعد میں پڑھانا. کسی کا نام کیا ہے؟ آپ کے ہمارے گھر میں مہمان کون آیا ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ بعد میں جانیں گے. پہلے دیکھتے ہیں بسکٹ لوگ کو دیتا ہے. تو ہم نام پہلے پڑھاتے ہیں اور اس کی فوئنکس کبھی نہیں پڑھاتے. بچہ لیٹر کو یاد کرتے ہوئے پڑھ لیتا ہے کہ اس کی آواز کیا ہے. یعنی بک آپ نے پڑھا دیا تو ڈبل او پڑھ لے گا، بیٹ پڑھا دیا تو اے کو اے پڑھ لے گا، لیکن وہ اے کو اے جانتا ہے، اے کے نام سے، آ کے نام سے نہیں گر جاتا. تو بتاتے یہ ہے ماہرین کہ اس طرح سے پڑھانے سے، اے بی سی ڈی پڑھانے سے بچہ جلدی زبان نہیں سیکھ پاتا. جو ہمارے یہاں بچے نہیں سیکھ پاتے، کسی چیز کو صحیح نہیں پڑھ پاتے، اس وجہ سے وہ نہیں پڑھ پاتے. مثال اچھا، اس کی فوئنکس جو ہے میں نے ایک انگریز کی ریکارڈ کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے، تو سنا دیتا ہوں اس کے بعد آپ. This letter is A. The sound of the letter is A. It's important to understand there are three parts. Okay? Picture, name, sound. The name is the least important of all of them. That's just what we use to spell words. Sound is how we decode words. Look up decoding. If you teach very young learners, look up Zoe phonics. Can you add 1 and 2?
Johnny phonics is wonderful. If you're teaching slightly older, look at Montessori phonics, word families. Okay, here we go. For reference to the teacher. Do not put this on in class and take it as a lesson, okay? That would be lazy. Okay, let's go. A, B, B, C, C, D, D, E, F, F, G, G, H, H, I, E, J, J, K, K, L, 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 M, N, N, O, F, P, Q, 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 R, not the, R, S, T, U, V, no, X. This is a K and an S sound together. As in box, fox. Not fox. No. Y, Z, S can often have this sound if it's what we call a hard S, as in the word is, is. Hope this is useful. If you need any help, message me on Facebook or YouTube. I will do stage 1 Montessori next. How to blend consonant and vowel. तीन चीजें हम है, एक तो पिक्चर है, यानी इसको हम निशान ये एक पिक्चर है। फिर बताया कि उसका एक नाम है ABCD और फिर एक उसका साउंड है। साउंड में हम लोगों ने देखिए लहजा तो नहीं ला पाएंगे, है ना। कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया, तो हम लोग अपनी रखेंगे। ज्यादातर तो ठीक है, कुछ चीजें उन्होंने अलग, जैसे M, R और Z इसमें पूरी तरह से नहीं निकला, है ना। इस तरह से क्या है, बर्ड में राम नहीं पड़ा, बर्ड तो अर्र जो आवाज है वो उसने बताया, उसको उसकी जबान है, शुरू तरक्की से बोल रहे हैं बर्ड। M के बारे में ऐसे बताया था उसने, तो ये वैसे अम्ब्रेला, तो माँ की आवाज नहीं निकलती, अम्ब्रेला बीच में जो आवाज हुआ। एक्स के बारे में बताया कि के और एस बता रहा था ना, के की आवाज और एस की आवाज मिला के। अब हमको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो बोल पाएंगे। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा बड़ा, इससे बच्चे ज्यादा कैसे सीख जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। क्या लिखा है? बट और पुट, यही है ना। कोई बता पाएगा यार, यू लगा है तो ये बट हो गया, ये यू लगा है तो ये पुट हो गया? अरे बताइए क्यों ऐसा? भाई ये एक जो है कॉन्सोनेंट है, बी है, ये एक लेटर है, ये बी है, उसके बाद वावेल दोनों में एक ही लगा है और आखिरी कॉन्सोनेंट दोनों में एक ही है। इसको हम बट पढ़ रहे हैं, इसको हम पुट पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा फर्क। तो
ये तो भाई नाकाबिले बर्दाश्त है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह क्या है? अगर हम फोनिक्स का साउंड जान रहे होते तो अब कब के निकल गए होते इस उलझन से। ये असल में है बा, ठीक है ना? और ये पी जो है ना, ये बिल्कुल क्लियर पा नहीं है, गर्व है। हम लोग उसको पुट पुट बोलते हैं, यानी इसका जो साउंड है उस हिसाब से ये सीधा होता है। इसका साउंड बात बिल्कुल सीधा है, बट हो गया। पी का साउंड क्या बताया किसने? फिर से देखो, दूसरे टाइप का बोला, मतलब क्लियर नहीं कर रहा। उस वजह से अब हमारे यहाँ पुट है, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा उसकी वजह से ऐसा हो गया। और वैसे अंग्रेजी के बारे में ये सब लोग जानते हैं कि इसके पास अपना कोई फिक्स कानून है ही, लेकिन अब ये बेइज्जती वाली बात है ना, अंग्रेजी जबान इंटरनेशनल जबान है और इसके बारे में ये कहना कि उसके पास अपना कानून दास्ता नहीं है, ऐसा क्यों है? उसका जवाब उन्होंने दिया है कि भाई हमारे पास हमारी जो जबान है उसके कानून है, हमारी जो अपनी जबान है कानून है, लेकिन अंग्रेजी में जो दूसरी जबानों के लफ्ज डाले गए हैं उसके कानून है। अरबी में भी ऐसा है, अरबी में इस तरह के लफ्ज को गैर मुनसरिफ बोलते हैं, यानी उसके इराब में कोई तब्दीली नहीं होती, उसका अंदाज दूसरा होता है, ठीक है ना? तो ऐसे इनके भी है, वरना इनके भी अपने कानून है कि दो वावेल के बीच में कॉन्सोनेंट आ जाए तो उसको डबल लाना पड़ता है, इनके अपने कानून है। जैसे कलेक्शन मानते, कलेक्शन या जो है पुल्ड है, पुल्ड, ये दोनों वावेल है, ये दोनों वावेल, दो वावेल के बीच में अगर कॉन्सोनेंट आए तो डबल लाते हैं, तो अपना है रूट आपका। लेकिन ये कि बहुत सी चीजें हैं जो नहीं समझ आती, और ये किसी भी जबान की चीज होती है। ग्रामर का उसूल बताया जाता है, फिर कुछ एक्सेप्शन निकल जाता है कि ये फला फला चीज पर लागू नहीं होगा। तो ये वीडियो जो है ये वाली, ये आप लोग सुनिए और कोशिश ये की जाए कि पहले फोनिक्स सिखाई जाए। ये क्या है? आ, बाद में बताएंगे कि इसका नाम ए है, या फिर दोनों साथ में लेक्चर में अगर चला सकते हैं। अब ये जो घर जाकर पढ़ाएगा, उन्होंने से आज बाजी में पढ़ाया, अम्मी कहेंगे चलो निकालो वहां तो जो है पढ़ा रहे ए है, और वहां बाजी में पढ़ाया है इंग्लिश को हिंदी पढ़ा। हाँ, इसको तो हमारे बच्चे की तो लाइफ खराब हो गई है। चलो निकाला, चलो 700 चला गया बात ठीक। तो दोनों पढ़ा सकते हैं और बता भी सकते हैं बेटा इसका नाम ये है, नाम ये है, पढ़ा ये जाता है। दोनों बता दें कि मेरा ख्याल है कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा। तो कहेंगे ये एक पिक्चर है, ये एक पिक्चर है, इसका नाम ए है, पढ़ा जाता है, इसका नाम बी है, पढ़ा जाता है। तब बैलून के लिखा है ना, तो फिर वो बी, अब जैसे हमारी यूकेजी पढ़ के निकली बच्ची, अब सी पढ़ेगी, बहुत बड़ी बड़ी किताब खोल के बढ़ जाती है, तो अब सी पढ़ेगी तो सीवर के हिसाब से मिलाना शुरू कर देगी। सी है इसका, है ना, तो अब सी के हिसाब से मिला रही है इसको, नहीं बेटा सी नहीं तो का पढ़ेगा, का पढ़ेगा, कैट पढ़ेगा मिसाल। तो साउंड समझ में बात आई, बात आई, साउंड आप सिखाएंगे तो अलिफ बे जैसे है, शुरू में ही पढ़ाया जाता है, तो चलिए मान लो पढ़ा देते हैं अलिफ बे जैसे, नाम जान गए, नाम जान गए, लेकिन ज्यादा फोकस साउंड पर ऐसे पढ़ेंगे और इसकी निशान, इसकी अलामत ये है, और पढ़ेंगे तो इसकी अलामत ये है, पढ़ेंगे इसकी अलामत ये है। तो छोटे बच्चों को हम इस तरह से पढ़ाएंगे। मेरा ख्याल है कि 2 फार्मूले हमारे लिए बहुत मुआविन होंगे इंशाअल्लाह हमारे नए सेशन में। एक तो बड़े बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए लेसन प्लान की मदद से, और दूसरे छोटे बच्चों में किस तरह से काम किया जाए।
गिनती वगैरह में LKG में 20 तक की गिनती रखी गई है। गिनती में एक तो ये कि पिक्चर का नाम आप याद करा दें। हमारे यहाँ मतलब आम स्कूलों में, हम अपने यहाँ की बात नहीं करते, हमारे यहाँ कह के पिक्चर का नाम याद दिला देते, तो देख के बता देगा 2 है, लेकिन 2 किसको कहते हैं बात, हमको 2 किसको कहते हैं ये सिखाना है। जब 2 कहें, 2 लोग आओ तो 2 लोग निकल के आए, 2 उंगली दिखाओ तो वो 2 दिखाए, ठीक है। 2 सामान लाओ तो 2 लाए, इसका मतलब है कि अब आपने 2 पढ़ा है, वरना सिर्फ 2 कर रहा है और आगे कुछ नहीं कर पाए, इसका मतलब आपने उसको नाम याद करा। तो हमको नाम के साथ उसका जो असल पहचान है वो सिखानी है। KG को और भी अच्छे तरीके से पढ़ना हम सिखा सकते थे आपको, लेकिन अब टाइम नहीं है और अभी हो सकता है रिजल्ट वगैरह कुछ काम बाकी रहे।